Most welcome student, this is Utkarsh Tiwari, chemistry faculty. Now student, we are coming the next part of atomic structure. This is the discovery of neutron. Now neutron is actually discovered by James Chadwick by element transmutation method. Now here you see that if we bombarding of alpha particle, actually helium represent the alpha particle, because we charge on alpha particle charge is equal to plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is a equal charge, whatever the charge of nucleus of helium, because helium has a 2 proton and each proton we know that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So if we bombarding of alpha particle on a beryllium, so 4 beryllium atomic number which has atomic weight change into carbon 6, atomic weight is 12. So here you see that 4 to 6, here 6 is their atomic number, 9 4 13, so here is a 12. It means one element is also produced which has a neutral charge, means a no atomic number and one atomic weight. This is a neutron. Similarly, over here, on bombarding of alpha particle on boron, then is changed into neutron, nitrogen, and we see that 5 to 7, here 7, 11 4 15, there is a 14. It means one neutral particle is produced which is atomic number 0 and atomic weight is 1. This is actually neutron, and you must remember that half-life period of neutron is a 17 minutes, and the charge is no, so this is chargeless body, and a mass become a 1.674 into 10 to the power minus 24 gram, or you can also write that 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. Clear? So this is a mass on neutron. After that we are coming the next point. This is a discovery of nucleus. Now see that before the discovery of nucleus, you must be coming and concentrate these 2 points. Data are there. The first one, this is a discovery data. Now discovery, here I am discussing about discovery. Now you see that discovery of electron is actually 1896, or sometimes they are say 97, and discovery of proton, this is actually 8086, and discovery of neutron, this is 1932, and discovery of nucleus, this is 1990. यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वी आर कमिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में. नाउ स्टूडेंट, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, we are actually coming the atomic model, because they are interrelated to each other. The first atomic model is, this is a Thomson model. Thomson model is actually called a plum pudding model और वाटरमेलन मॉडल. यानी कि जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड रहते हैं, तो उन्होंने बोला सीड इलेक्ट्रॉन्स है, और जो फ्लूइड होता है दिस इज न्यूक्लियस, वो पूरा न्यूक्लियस होता है. यानी कि एक तरह से बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट मीन्स दिस मॉडल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Now after the Rutherford Thomson model, this is Rutherford model is coming, and Rutherford give the discovery of nucleus and as well as explain the its atomic model with the help of this experiment. Now in the discovery of nucleus, यानी discovery of nucleus के साथ साथ इन्होंने Rutherford ने अपना atomic model भी दिया था. So the first point is, it is a discovery of nucleus given by Rutherford. They use the radium and polonium for producing the alpha particle. Now the velocity of alpha particle is actually 16,000 km per second. They use the inert metal foil. This is a gold foil which has a thickness is a 10 to the power
minus 4 mm. And also remember that they use the screen which is coated with zinc sulfide. They use the zinc sulfide. Now see that you see the figure, both figure, ray diagram and as well as actual diagram, how to discover. He take this is lead block and here put the radium for production of alpha particle. He take actually a glass plate or can also take a lead plate. This is a slit and here you see that gold foil and that one is a screen coated with a zinc sulfide. This is a phosphorescent material, we already know that. Whatever the alpha particle is produced, they strike over here and move like that. इस तरीके से बिखर जाती, but they never coming in that position. Why? Now we see it. ये स्क्रीन थी जिसमें जिंक कोटेड कर दिया था, अगर कोई गिरेगी चार्ज पार्टिकल तो चमक पैदा होगी. ये स्लिट है, ये लेड ब्लॉक, लेड लिया हुआ है, लेड की प्लेट है, लेड इनर्ट रहता है इसलिए, और साथ साथ रेडियम अल्फा पार्टिकल. यहाँ पर याद रखिए कि इसके पाथ को मेज़र करने के लिए साथ में कैमरा भी लगा हुआ था जिसने कैप्चर किया था. लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल ही रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्रोड्यूस नहीं होते, बीटा और गामा भी प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन क्या रहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड सबसे कम होती है, उसी को ही ये मैं देख पाए, समझ पाए, और साथ साथ ऐसा नहीं कि और भी नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा. यहाँ पर जो डिस्कवरी हुई उसी के ही बेस पे हुई, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल की बात. आप सबको नेक्स्ट फिगर से बात समझ में आ जाएगी. नाउ हियर वी टेक द एक्चुअल फिगर. दिस इज़ द न्यूक्लियस. तो इन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा कि सम अल्फ़ा पार्टिकल इज़ कमिंग एंड रिटर्न इट्स ओन पाथ. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आए, वो अपने पाथ से वापस लौट गए, यानी कि इसलिए क्योंकि डी डिस्टेंस, इन्होंने माना कि डी डिस्टेंस पे वापस लौट गए थे. यानी कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होंगे, जो किसी जो एटम था गोल्ड का, वो उसके सेंट्रल पार्ट से टकरा कर ही वापस इसलिए लौटे क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव होता है. उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला, वट एवर द थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, this one has also positively charged and rigid body, so alpha particle are written in the same path, because we know that alpha particle is a positive, so that one has also positive charge, so the alpha particle are written in the same path, इसीलिए alpha particle उसी path में लौट गए. Clear? तो this is the first point. The second point, some alpha particle are deviated in a 90 degree or more than 90 degree. 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट हो गए थे, यानी कि ये न्यूक्लियस के पास से होके गुजरे होंगे, तो उस ये ऑब्ट्यूस एंगल पे हुए, तो कुछ न्यूक्लियस के पास से गुजरने की वजह से 90 या 90 डिग्री पे ये डेविएट हो गए. क्लियर? और दिस इज द सेकेंड पार्ट, सम अल्फा पार्टिकल आर डेविएट 90 एंड मोर देन 90 डिग्री, एंड द थर्ड वन इज सम अल्फा पार्टिकल इज अ पास विदाउट एनी डेविएशन. कुछ अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन सीधे चले गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेक्शन हॉलो था या उसके मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं आ पा रहे थे. क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट दे फाइंड आउट ईच एटम हैज़ अ सेंट्रल पार्ट विच इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज रिजिड बॉडी एंड दैट वन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस. उनको उसने न्यूक्लियस कहा. क्लियर? नाउ वट एवर द अल्फा पार्टिकल आर डेविएट इन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पे डेविएट हो गए थे उसको उन्होंने निकाला 90 डिग्री या थीटा डिग्री पे, n बराबर k 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2, यानी कि n मीन्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, जो थीटा डिग्री पे डेविएट हो गए, तो ये लिखा हुआ दैट वन इज एक्चुअली थीटा बाय 2.
θ/2 यानी कि थीटा डिग्री पे डेविएट हो गए थे। तो अगर हमें एंगल मालूम होगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वट एवर द डेविएट इन 90 डिग्री वी फाइंड आउट वेरी इजली। हम लोग अल्फा डिग्री पे जो डेविएट हो गए थे, जितने अल्फा पार्टिकल पे डेविएट हुए थे यानी कि थीटा डिग्री पे, उस अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं अगर हम लोग को वो एंगल मालूम हो जिस एंगल पे वो डेविएट हुए थे। क्लियर? So this is in this way we find out the how many alpha particle are deviate on the basis of the following experiment. We know that each atom has a central positively charged body. This is called a nucleus. Now after that this experiment we can also find out that one हम लोग एक point और हम लोगों को मिला. Now see it. Radius of nucleus this is 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर टू 10 की पावर माइनस 15 सेंटीमीटर and radius of atom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter. Clear? Now one formula is also there, then we calculate the radius of nucleus, and the formula for size of nucleus we can find out like that method. R is equal to 1.33 10 to the power minus 13 a की पावर 1/3 से कैलकुलेट कर सकते हैं. Here a means mass number. So if we have a mass number means atomic number, then we very easily find out the radius of nucleus. Clear? If we have a radius, if we have a atomic weight, then we very easily find out the atomic radii of the particular shell. Now we are coming the next one, some important point. Then one type of question is also coming, charge upon mass value. This is a E upon m value for neutron, alpha, proton and electron, like that way. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रहता है, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल और फिर न्यूट्रॉन के लिए अल्फा अपॉन चार्ज अपॉन मास की वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आती है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आता है, इसलिए याद रखिएगा. Now after that we are coming the next one. Next one is actually defects of Rutherford model. इन्होंने इस पूरे से एक्सप्लेन क्या किया. ईच एटम हैज़ एटम इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया. इन्होंने दिया ईच एटम इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच हैज़ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट शेल. इन्होंने बोला डिफरेंट शेल में थे. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन अ सर्कुलर शेल बोला था एटॉमिक रेडियस 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर रहती है एटम की, और न्यूक्लियस की 10 टू द पावर माइनस 12 टू 10 माइनस 13 वी ऑलरेडी सी ओवर हियर. और बोला था इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में मूव करते रहते हैं. ये चीज़ बताई थी. लेकिन अब इनके डिफेक्ट समझ लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल and its limitation की बात करेंगे. ठीक है, तो जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. क्या था कि चार्ज क्या था विथ लॉस ऑफ एनर्जी करता है, मूव करता है. मूव करने पर तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी को लॉस करते और रिवॉल्व करते रहते हैं. अगर ऐसा करता रहेगा तो लास्ट में सेंटर से मिल जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जिसको मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बोला कि अगर ये बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर
डिफरेंट शेल में एनर्जी को लॉस करते रिमूव करता है, रिवॉल्व करता है। अगर ऐसा करेगा तो लास्ट में एटम न्यूक्लियस से मीट कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफेक्ट और लिमिटेशन इज ही वाज एक्चुअली कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय स्ट्रक्चर ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मीन्स जो स्पेक्ट्रम क्या होती है, स्पेक्ट्रम वी ऑलरेडी नो दैट अ पैकेट ऑफ वेव्स, ठीक है, पैकेट ऑफ वेव्स को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसकंटिन्यूअस जो लगातार आए, कंटिन्यूअस वेव जो ना कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई एम राइट ओवर हियर। क्या था सेकेंड डिफेक्ट, क्या था कि he could not explain the structure of discontinuous spectra. Clear? Now after that we are coming the Moseley's work on atomic number. So actually Moseley scattered cathode rays and find out the nature of electrons and atomic number in any atom. Now Moseley take the actually vacuum tube. This is a vacuum tube and scattered cathode rays on a plate, then X-rays are produced. ये इन्होंने एक्सरे कैथोड रेज से प्रोड्यूस की, कैथोड प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से ये इंसिडेंट हुई मेटल पे। दो कैथोड रेज ये थी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला प्लेटिनम का बनी हुई प्लेट थी। तो एक्सरे प्रोड्यूस हुई, उससे स्टडी करी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, तो देखा कि जो एक्सरेज के फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट था ZA-B इक्वेशन दी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर A इंटू Z-B इक्वेशन दी इन्होंने। तो इसमें इन्होंने देखा कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहता है, वो एटॉमिक नंबर रहता है, ना कि एटॉमिक वेट रहता है। इसको इन्होंने ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया। ए याद रखिएगा न्यू फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की थी, ए प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, एंड ए इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। क्लियर? नाउ दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन से इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी का, जो फिगर थी 10⁻⁻8 पर सेकेंड में एटॉमिक वेट के साथ। तो ये ग्राफ स्ट्रेट आना चाहिए अगर फॉलो करता है, लेकिन ये आया इस तरीके से, नॉट कांस्टेंट, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर उसी तरीके से इन्होंने फ्रीक्वेंसी को लिया एटॉमिक नंबर के साथ, तो ये स्ट्रेट पाथ में आया, यानी कि कांस्टेंट ये फॉलो कर रहा था। तो इन्होंने इसीलिए दिया द फिजिकल एंड केमिकल properties depend on atomic number। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड यू कैन से दैट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट depend on atomic number, not atomic weight। Clear? So this is a Moseley law. Or now student, this is the last point of the today video. I am coming the next video with the next topic. This is a nature of elements and
nature of elements means what is isotope, isobar, and so on. Clear? So this is the end of the video. Thank you and thanks a lot.